यूपीएससी प्रीलिम्स पास आ रहे हों तो रिवीजन के साथ साथ मेंटरिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा सेशन मेंटरिंग सेशन है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द आईएएस वर्ल्ड। माय नेम इज़ काजल गुरनानी और आज हमारे साथ हमें मेंटर करेंगे, गाइड करेंगे प्रवीण सर। प्रवीण सर, आई वेलकम यू टू द आईएएस वर्ल्ड। Thank you, ma'am. Thank you so much for calling me on your platform. तो प्रवीण सर स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रवीण सर के बारे में देना चाहूँगी। ही हैज़ मोर देन 10 years of experience teaching UPSC students on pan India basis. He is ex professor, assistant professor of Delhi University. He has written several books also. उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी में सिलेक्ट भी हुए हैं। और मुझे लगता है कि मैंने प्रवीण सर का इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से नहीं दिया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ, मैं प्रवीण सर से रिक्वेस्ट करूँगी प्रवीण सर कि आप स्टूडेंट्स को कुछ अपने बारे में बताएं, हमें एनलाइटन करें कि आपकी जर्नी कैसी रही। Ma'am, thank you so much for giving me this opportunity that I could interact with the student. I'll not take much time and I'll give you my brief introduction again. As of my journey for the teaching started in 2004 when I was appointed as an assistant professor at Delhi University, and I continued till 2009. And that was a very pleasant time and very much great exposure with the student youngsters, those who were preparing and were entering there in the preparation mode. So I continued there. I have mentored there in terms of guiding them in the many field, and many of my students they have achieved a lot and they have reached to a great milestones there in their life. नाइस। After 2009, I entered there in the teaching for the civil services, and since 2009, I have been teaching them. And the my students, and I would say I have been very much fortunate that my students have achieved the great success in the civil service field also. The most important, and then I will definitely recall my student Dhruv Mittal, who was selected in 2018, ओके। and his rank was all India rank was 99. ओके, ध्रुव And मित्तल, ऑल इंडिया Dhruv, रैंक 99। ओके। right, in 2018, he was in my complete mentorship. He had taken the coachings from or this great institute or the leading institutes of the Delhi. But when he came in my guidance, in my mentorship, he was very happy and finally got the selection in my mentorship. ओके, नाइस। Then after, in the same year, there was another student, Santosh Chaudhary, and last year I have gotten this one of the good result there, 374 rank. Sarath Nayak from Hyderabad, he is also my student. ओ नाइस। So in the timeline of this long experience, I have been very fortunate, and the students have been benefited by my teaching, particularly their guiding them. ओके सर, आप प्लीज़ हमारे स्टूडेंट्स को भी बताइए कि जैसे प्रीलिम्स में अब बस 2 महीना रह गया है, तो आप क्या, आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स को फॉलो करनी चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे सब लोग रिवीजन ही कर रहे होते हैं। तो रिवीजन की भी अगर आप हमारे स्टूडेंट्स को कुछ गाइड कर पाएँ कि कैसे रिवीजन करें, किस तरह से करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैम, जैसे स्ट्रैटेजी की बात है, स्ट्रैटेजी हैज ऑलवेज बीन प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ द प्रिपरेशन, बट लेकिन उस स्ट्रैटेजी का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो एग्जीक्यूशन होता है, इट कम्स एट द एंड व्हेन द एग्जाम अराइव्स. So strategy, and we can say, and also of my experience, I can say that the strategy is extremely important at the time of execution, where it has been properly implemented before the examination. That particular time is 3 months before the examination or the 2 months before the examination. तो ये वाला जो टाइम है, तो ये टाइम एकदम क्रूशल टाइम है स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने का. मतलब स्ट्रैटेजी को आप जितना ज़्यादा एनफोर्स करेंगे, जितना ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा आपका सक्सेस रेट क्या है, बढ़ जाएगा. तो स्ट्रैटेजी में क्या है कि अभी ये जो टाइम है, 2 महीना रह गया है, 2 महीना से 1-2 दिन कम है. तो उसमें क्या है कि एक स्टैटिक पार्ट जो इम्पोर्टेंट होता है, जो कि रिवीजन मोड में होता है. अभी क्या है, प्रेजेंटली क्या है कि स्टूडेंट को मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी नया कुछ नहीं पढ़े,
जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करें। अब वो रिवाइज किस तरीके से होगा? रिवाइज यू कैन गो एट द question answer format or the test series format. But I want to appreciate your channel that you have been uploading the question answers very regularly, and I have also gone through your channel. This is very much beneficial and extremely useful for the student. थैंक यू And, सर. every day writing of this or testing these 5 questions, 10 questions, particularly of that subject, it is extremely helpful, and definitely your students are going to have the benefit of that the approach what you are taking up. So I appreciate of your effort. थैंक यू सर. Secondly, सर बस यही कोशिश थी हम लोग की कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि पूरा टाइम जब स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं यूपीएससी के लिए रिवीजन करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी सैचुरेशन लेवल भी आने लगता है, थक जाते हैं. yes, तो ये ऐसा बनाया हम लोग ने कि आप बैठे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, म्यूज़िक भी, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी है. म्यूज़िक कैसे रिलैक्सेशन थेरेपी का काम करती है. yes, और exactly, उसमें बैठे बैठे 1 मिनट 2 मिनट में वो क्वेश्चन आप देख लें तो आपको पता भी चलेगा आपका रिविजन कैसे हो रहा है, मॉनिटर करता है. absolutely, और उसके perfect, बाद हमने perfect उसके approach. आंसर्स दे दिए और जो मुझे लगता है हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को. और एक हम इंस्पिरेशनल कोड भी ज़रूर डाल देते हैं सो दैट Yes, स्टूडेंट्स आर इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड. absolutely, absolutely. This is a very much perfect approach I have seen here on your channel. And also, this secondly, I would say that the current affair which the students are preparing, so they should give more focus on that presently. Means the time or the strategy should be divided at present time 70-30 approach. Means 70 means 70% should be focused there on the current affair, ओके. and 30% should be there on the static section. Static section, that means history, geography, economy, and all. So that you can go on, but the 70% time should be devoted to the current affair. So ओके. that strategy is best for the upcoming prelims examination. ओके. ओके सर, करंट अफेयर्स की बात हो रही है तो एक डाउट हमेशा स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि हमें प्रिलिम से कितने समय पहले न्यूज़पेपर को पढ़ना छोड़ देना चाहिए, बिकॉज इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक 1 डेढ़ घंटा लग जाता है स्टूडेंट्स को, खासकर जो पहली बार अपेयर हो रहे हैं. तो उनके मन में ये बहुत बड़ा डाउट होता है. और फिर मेंस की बात आ जाती है कि हम प्रिलिम्स में अगर 1 डेढ़ महीने का गैप कर भी देते हैं तो फिर मेंस में वो कैसे कवर करें. तो मैं चाहती हूँ आप प्लीज़ स्टूडेंट्स को इस बारे में गाइड करें कि उन्हें क्या करना चाहिए. Yes, this is very much important question in the mind of a student when they should leave the reading paper. So I would suggest that as you have exam there in the 2023 20th 28 May, so you can leave the paper from 15th of April. You can take the risk of the 51 month. So you can leave paper after the 15th of April. So there and then after you can focus there the current affair period. Earlier it used to be 1 year. Now they have extended it to the 2 years because some of the questions in 2017 the question been asked there of the Kasturi Rangan Committee report, which is connected to the Western Ghat. So that report was submitted in the 2014, but the question was asked in the 2017, ट्रू सर, वेरी ट्रू. right? So that way, the period of the current affair has been extended, and UPSC does not want to be static over the pattern. So I feel that they have been demanding that students should be aware more about the last happening at least for the 2 years. राइट सर. This is for the prelims approach, or means the revising of the current affair for the 2 years. Definitely, it will take at least a 1 month. With the concrete learning of this, it will take the 1 month at least. So you should give focus more on the current affair. 70% time, as I have already said, 70% time should be devoted to the current affairs. Right. Then it comes to the mains examination. So mains examination has a different approach. Mains examination demands their writing skill and the your skill of interconnection of the traditional general studies and your current affair. For example, this approach should be started at the beginning of the preparation. So you should prepare your own notes that you can have the complete understanding of the current affair. तो उसमें क्या होगा देखो आप, जब भी आप अभी मैं अगर इसमें प्रीलिम्स के बाद आने वाले मेंस की जो बात करूँ तो
This time you can go or you can have this approach in your writing of the answers, that the traditional aspect when you're writing, you can incorporate the current affairs in your answer writing. So, for example, any of this judiciary system is there, or this recently there's so many changes in the political system, and Okay. also this, for example, like the Rahul Gandhi's disqualification of this from the Lok Sabha. This can be the this is the part of current affair. You can incorporate this case study in your answer writing, and what are the criterias of this Lok Sabha and the what constitution says about it. You can write that there in your answer. As far as if I discuss about this writing of the geography questions in the bits, recently the earthquake has occurred there in the Afghanistan. The tremors were felt there in Delhi and the NCR and up to the Uttar Pradesh. So this, when you will write the answer on earthquake, you can incorporate this current information in your answer. Okay. So current affairs are very much integral part of your writing. So if you incorporate the current affair, definitely it will give you edge. And examiner also want this, that what you know about the current affair and how you incorporate the current affair in your answer writing. Your answer in the main should not be traditional, right, or the theoretical. You must add or you must write the current affair, and you should conclude with some of the future prospects, some suggestions, some conclusion should be very much constructive in your writing. ओके, ठीक है। सर, जैसे आपने अभी बात करी कि स्टूडेंट्स को अपने नोट्स बनाने चाहिए, पर रियल लाइफ में यूजुअली होता ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए होते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है न्यूज़पेपर पढ़ने में और उसके नोट्स बनाने में। तो जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं या जिन्होंने बनाया है और उन्हें फुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारे नोट्स बिल्कुल ठीक बने हैं, जो इन्फॉर्मेशन लिखनी चाहिए वो उन्होंने लिखी है कि नहीं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या सोर्सेज हो सकते हैं करंट अफेयर्स के उनके लिए? यस। हाँ, ये थोड़ा-सा एक बच्चों में डाउट रहता है कि सोर्स हम क्या यूज़ करें, वेदर इट इज़ वैलिड सोर्स और नॉट वैलिड सोर्स। एक्चुअली मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, बिगिनर्स जब भी मार्केट में बुक शॉप पे जाता है, तो दे फाइंड सो मेनी कलरफुल बुक्स राइट। एंड दे आर टेम्प्टेड, ठीक है? एंड सो मेनी इंस्टीट्यूशंस, सो मेनी बुक्स दे ऑलरेडी अवेलेबल देयर इन द मार्केट. So get confused what to read, what not to read. Actually, the success story of this examination is that student should read uh, pinpoint information. Then they should not read the stories, right? So they should take any of the material or the magazine and should follow that only. Any of the magazine they can select, or better they can select the government source like the PIB. They can go Rajya Sabha, they can go Lok Sabha, they can go. So PIB is the best source for this information. That is a authentic. That is a government of India publication, and that is best source. Even though UPSC people, those who are the paper setter, they are not following the guides which are available there in the market in the form of current affair, in the form of other informations. They are not going until it is written by some authentic source. Like for example, Yojana is there and Kurukshetra is there, right? So they will definitely go for the collection of information from those sources. But the guides they are usually avoiding, right? So I would suggest for the student, those who have not prepared their notes, they should go for this 1 year or 2 year PIB is available there printed in the printed form in the market, irrespective of the logo printed on that booklet. ओके। Just only follow PIB booklets which are available in the market, and this present time revision of this upcoming prelims examination. ओके। That would be a best source for according to me. ट्रू सर, वेरी ट्रू। सर, एकेडमिक प्रिपरेशन तो होती रहेगी, हम आपने गाइड भी कर दिया स्टूडेंट्स को, वो फोकस भी कर रहे हैं अपना एकेडमिक प्रिपरेशन पे। पर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं भी मिलती हूँ, तो बस एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम्स की डेट पास आती है, कहीं ना कहीं एंग्जाइटी लेवल बहुत बढ़ जाता है उनका। जल्दी जल्दी सैचुरेशन लेवल आता है, डीमोटिवेटेड फील करते हैं, थोड़ा प्रेशर फील करते हैं, लाइक फैमिली का प्रेशर होता है, एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, बहुत से लोग जॉब भी छोड़ के प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं।
तो इस समय पे आप आपके अकॉर्डिंग कैसे स्टूडेंट्स को हाउ दे कैन कीप देमसेल्व्स काम एंड मोटिवेटेड? यस मैडम, आपका जो क्वेश्चन है बहुत एकदम वैलिड है, क्योंकि जो स्टूडेंट सेकंड अटेम्प्ट ले रहा होता है या थर्ड अटेम्प्ट ले रहा होता है, ये उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, ये बहुत प्रेशर वो जनरेट करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर अपने आप पे बहुत जनरेट कर लेते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि मतलब इवन दो स्टूडेंट्स पेरेंट्स आर नॉट प्रेशराइजिंग देम, बट एज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट और एज ए फीलिंग द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वो ये बहुत एनजाइटी उन्होंने क्रिएट हो जाता है कि मेरा अभी तक 2 अटेम्प्ट हो गया, 3 अटेम्प्ट हो गया, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। तो बट आई वुड सजेस्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स कि आपको इस तरीके से प्रेशर बिल्डअप नहीं करना माइंड में। जस्ट कीप फोकस ऑन द नेक्स्ट अटेम्प्ट, forget about the previous failures, and always failures gives a great success in the future। ठीक है? तो इसलिए क्या है कि अभी प्रेशर को माइंड में लेना नहीं है, जस्ट कीप फोकस ऑन द अपकमिंग एग्जाम, डू योर बेस्ट, एंड ऑल्सो यू विल क्लियर। ये पक्का है, अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो हमेशा और हमेशा आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो जी एक तो सबसे पहली बात, प्रेशर नहीं लेना है। अभी इसमें क्या होता है कि आप बहुत पढ़ चुके हैं, एग्जाम कैसा होगा यू डू नॉट नो, और एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा ये भी आपको नहीं पता है। तो इसलिए आपको क्या है कि हमेशा आपको रिवाइज करना है। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट कॉन्फिडेंस लूज करने लग जाते हैं। यस सर, तो ये बहुत कॉन्फिडेंस बड़ा प्रॉब्लम है जो मैंने भी नोटिस किया है। यस, कॉन्फिडेंस लूज लूज करने का एक रीजन होता है क्योंकि उनका रिवीजन प्रॉपरली नहीं होता है। तो आप, मेरा स्टूडेंट से सजेशन यही है, एडवाइस है कि आप रिवाइज करिए, जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। डोंट बी सेटिस्फाइड विद द रिवीजन, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप रिवीजन से कभी सेटिस्फाई होइए ही मत कि आपने 4 बार रिवीजन कर लिया, आई एम कॉन्फिडेंट, नो। go if you have done 5 times, go for 6 times, if you have done 6 times, go for 7 times। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और आपका जो क्लियरिटी वाला चांसेस है वो जल्दी जो वो एकदम स्मूथली पूरा हो जाए, और यू विल रीच टू योर डेस्टिनेशन। क्योंकि क्या होता है, यूपीएससी में कभी कभी ऑप्शन जो है ना बहुत क्लोज होते हैं कि सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है लग रहा है। तो वो इसलिए दो ऑप्शन इसलिए लगता है क्योंकि हमारा देर इज ए लैक ऑफ रिविजन। कभी कभी जो स्टूडेंट प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं किए होते हैं, उनको क्या चारों ऑप्शन करेक्ट लगते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि देर इज ए लैक ऑफ रिविजन, राइट। तो जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना आप उसको टेस्ट सॉल्यूशन करेंगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा। अभी आपको कभी आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप बहुत बोर हो गए हैं, आप कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, यू कैन गो फॉर द वॉक, यू कैन गो फॉर सम एंटरटेनमेंट लाइक मूवीज और some 1 or 2 days outing, right, to relax your mind, then you can restart your journey or restart your revisions. So that is acceptable, but wasting time, this in a crucial period, it is very much risky। राइट सर। सर साथ में मैं ऐड करना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स यहाँ Yes, पर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इट विल हेल्प देम yes, exactly, कीपिंग देमसेल्व्स काम। absolutely। सर आप ज्योग्राफी के फैकल्टी हैं, इतने सालों से आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। आई थिंक आप यू आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस और कैंडिडेट टू टेल अस कि इस समय हमें ज्योग्राफी के रिवीजन के लिए क्या अप्रोच रखनी चाहिए, और इस साल प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से? हाँ, यस, जो अभी रिसेंट ट्रेंड में एग्जामिनेशन में क्या है, इवन दो यूपीएससी जो है ट्रेंड कभी फॉलो नहीं करता है, एंड दे आर ऑलवेज नोन टू ब्रेक द ट्रेंड। राइट। बट सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस एग्जामिनेशन, अगर हम अब देखें, अभी अगर हम 10 years 15 years का अगर हम एक एनालिसिस पेपर देखें, नॉट ट्रेंड, इट इज एनालिसिस। अगर हम एनालिसिस करते हैं पेपर का, तो ज्योग्राफी में जितना भी करंट इंफॉर्मेशन है, मीन्स द प्लेसेस विच हैज बीन देयर इन द न्यूज, तो वहां से क्वेश्चंस पक्का आता ही आता है। जी तो ये जो सेक्शन है, लाइक लास्ट ईयर्स में देयर वेस्ट एशिया वाज देयर इन द न्यूज, तो वहां से क्वेश्चन आया। पहले साउथ ईस्ट एशिया यूज्ड टू बी इन द न्यूज व्हेन इंडिया बिकेम द पार्ट ऑफ आसियान। तो साउथ ईस्ट एशिया से क्वेश्चन आया मैप बेसिस पर।
उसके बाद इज़राइल, पैलेस्टाइन, वेस्ट एशिया वाज़ देयर इन द न्यूज़। दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम देयर, राइट? तो अगर लास्ट 2 इयर्स का अगर हम ट्रेंड देखेंगे, तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट हैज़ बीन वेरी मच देयर इन द न्यूज़। So we can focus there on the map locations, cities at the time of Ukraine-Russia war has been there in the news. So ओके। we can go for the location of those areas, right? And also the G20 meet has happened there in India. So we can go for the countries of the this member of the G20. ओके। और उसके बाद में बहुत सारा एक जोग्राफिकल इंसिडेंट इवेंट्स भी हुआ है, और डिजास्टर्स वी कैन से इट हैज हैपेंड देयर इन द वेरी प्लेसेस देयर इन द वर्ल्ड। तो उनके बेसिस पर वी कैन गो फॉर द मैपिंग, बिकॉज मैपिंग इज वेरी मच क्रूशियल। ट्रू। एंड ऑल्सो वट एवर द डिजास्टर द जोग्राफिकल इवेंट हैज हैपेंड देयर इन द वर्ल्ड in different locations. So on the basis of that conceptually impact and effect, we can go for this conceptual development with the application there in different part of the world. So that is another approach. And otherwise, the geography concept one is studied, it remains always there in the mind. This is absolutely conceptual. So upcoming examination or the upcoming prelims, I would suggest definitely this must go for the revision of the map. बट लेकिन मेरा एक्सपीरियंस में मेरा को बहुत सारे बच्चों का एक कॉल आता है, मैसेजेस आते हैं कि सर मैपिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज़ वेरी मच टीडियस वर्क टू लर्न द मैपिंग। देखिए मैपिंग कभी भी एक दिन में नहीं हो सकता है। मैपिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस अगेन एंड अगेन। सिंस द बिगनिंग ऑल्सो। Yes, since beginning also, and if you have not done now, you must have to start from today. At least you can go for the locations which are there in the news for the last 1 year. ट्रू। That is most important exercise and must do exercise ट्रू। for the mapping for geography. Because in geography you will find there geography and environment related, that is a 20-25 questions. But specifically only geography there are only 7, 8, 10 questions. But it also incorporate the environmental concept. So you can count it to the 20, 22 questions, sometimes 25 questions related with the current affair, because current affair in the geography also lap in the current affair. So that there you can reach to the 30, 35 questions. So it has a big sections in the prelims examination as well as in the mains. So if you want to go to this examination, you must have to learn the map. And also mapping also will help you to learn the concepts in the international relation. जी। मतलब बेसिकली ये है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं और आपके सामने किसी भी प्लेस का नाम आ रहा है, तो इतनी अच्छी आपकी समझ होनी चाहिए कि आप यू कैन विजुलाइज दैट प्लेस। Absolutely, जी। absolutely. तभी आपको लगेगा, खुद को भी पता चलता है कि तैयारी कैसी चल रही है, हमारी Exactly. प्रिपरेशन कैसी चल रही है। Yes, yes. सर, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं जो बच्चे पहली बार, उनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, उनको मिसगाइड करने वाले भी बहुत लोग होते हैं, गाइड करने वाले भी बहुत लोग होते हैं। मैं चाहती हूँ आप प्लीज़ थोड़ा सा उनको एक इस बारे में बताएं कि प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन जो हैं उनको अटेम्प्ट करने चाहिए मिनिमम। ठीक है। और उसमें जिस तरह का पैटर्न आ रहा है उसमें कितने उनके प्लस मार्क्स सही होने ही होने चाहिए। थोड़ा सा आई नो इसका एक डेफिनेट आंसर नहीं मिल सकता, पर फिर भी जो लास्ट ईयर के जिस तरह का ट्रेंड रहा है यूपीएससी का क्वेश्चंस का और उनके कट ऑफ का, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए कि किस तरह से उनको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि वो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं मैं तो 100 के 100 करके आता हूँ और मैं 95 से नीचे तो नहीं करता। तो उस केसेस में जब हम ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपका लक अच्छा है या आपका फ्लूक अच्छा लगता है, आपको पता है, तो ठीक है वो लोग पास हो जाते हैं। पर कई बार जो लोग फ्लूक मार के आते हैं वो उनका ऐसा होता है कि नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं पॉजिटिव से, तो उस चक्कर में चले जाते हैं। तो आप उनको स्टूडेंट्स को गाइड करिए कि किस तरह से उन्हें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस क्या होना चाहिए, प्लीज़ उन्हें गाइड कीजिए। हाँ, ये थोड़ा-सा बिगिनर्स स्टूडेंट्स में और फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स में थोड़ा-सा एक कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि 90% स्टूडेंट जो होता है वो अपने सीनियर्स को फ़ॉलो करते हैं। और कभी-कभी सीनियर्स भी ऐसा होता है कि मतलब जो उनका प्रीलिम्स नहीं निकला है, और ऐसा होता है कि मतलब कि वो उनको खुद अप्रोच उनका प्रॉपर नहीं होता, तो दे हैव बीन मिसगाइडेड और दे गेट मिसगाइड, राइट? तो उसमें ऐसा ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरे को एक थोड़ा-सा एक सिम्पैथी होता है कि मतलब बिकॉज़ ऑफ नॉट गेटिंग द गुड गाइडेंस, तो दे गेट डिस्ट्रैक्टेड।
even though those who are coming for the preparation field or the preparation this approach all have potentials. तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मेरे को मैं थोड़ा सा एक दो सजेशंस देना मैं चाहता हूँ, स्पेशली फॉर दोज हु आर बिगिनर्स। सबसे पहली बात, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जस्ट हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। जब तक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे ना, और यू विल गो इन द शेल्टर ऑफ अदर्स, डेफिनेटली अदर्स विल टेक द एडवांटेज। देखिए, हर नेक्स्ट जो स्टूडेंट है वो आपका कॉम्पिटिटर है, और आपका जो कॉम्पिटिटर है ही नेवर वांट्स यू टू बी सक्सीड बिकॉज ही हैज नॉट सक्सीड। तो इसलिए क्या होता है कि वो नहीं चाहता है कि आप सक्सेस हो या सक्सेसफुल हो, तो वो हमेशा आपको मिसगाइड करेगा ही करेगा। तो बिकॉज ही हैज सम सॉर्ट ऑफ disheartened और disappointment कि उसका नहीं हुआ, तो वाई दिस अदर पर्सन शुड डू। ऐसा मतलब बहुत कम मिलेगा, बट लेकिन दिस टाइप ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस फील्ड, दोज हु आर disappointed extremely और depressed। तो इसलिए ऐसा ऐसा स्टूडेंट से आप दूर रहिए, हैव ए कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। तो आपको खुद जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी सोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, जस्ट कंसिडर इट इट इज़ ए ऑथेंटिक सोर्स। जस्ट हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, हैव फेथ ऑन योर टीचर्स। So what you have been guided by the teachers, that is also the best. And also don't depend on the any of the seniors. Second thing, जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात आती है कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है, किस तरीके से क्वेश्चन नहीं करना है, एक आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो आपको एक डिफरेंट टाइप का एनवायरनमेंट मिलता है, डिफरेंट वाइब्रेशंस होते हैं उसमें, क्योंकि एवरीबडी इज इन द सेम प्लेटफॉर्म जो अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपको ये फील होना चाहिए था कि नेक्स्ट वाला जो स्टूडेंट है वो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसको मुझसे ज़्यादा राइट सर, आता राइट सर। है ना? तो वो चीज़ आपको बहुत एक तरीके से डिप्रेस वहीं से स्टार्ट हो जाता है। साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाती है। एब्सोल्युटली। तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होता है वहाँ से बिल्ड होना शुरू हो जाता है। अब जैसे-जैसे सपोज़ कि आपने फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखा, नहीं आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखा, नहीं आ रहा है, एंड इट हैज़ बीन लॉन्ग टू द लिस्ट ऑफ द 10 क्वेश्चन्स। तो आपसे एकदम से आपको एकदम एंग्ज़ायटी क्रिएट हो जाएगा, अरे! मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है। और तो बहुत ऐसा सटल नहीं लेवल होता। पे होता है सर ये सब। वो इट इज़ फॉर एवरीवन। नहीं आता है तो नहीं आता, कोई बात नहीं, यू गो टू द नेक्स्ट। और एक चीज़ और है यूपीएससी के अंदर, देयर आउट ऑफ द 100 क्वेश्चंस, देखो यूपीएससी का जो सिलेबस है वो आपका थोड़ा डिफाइंड भी है और नॉट डिफाइंड भी है। तो प्रीलिम्स वाले सेक्शन में है कि आपको 60 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन ऐसा होता है, और एटलीस्ट इफ आई गो टू द मिनिमम लेवल 50 क्वेश्चन ऐसा होता है जो एवरेज लेवल का होता है, मतलब कि जो आपने रिवाइज किया है और वो आपको आता भी है, बट लेकिन वो वेयर इट इज लाइक इन द सीक्वेंस। अगर आपके 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो यू विल बिकम सो मच एक्साइटेड कि मतलब नहीं आ रहा मुझको। आपका साइकोलॉजिकल प्रेशर हो जाएगा, नहीं आ रहा तो मुझे क्या होगा, मेरा क्या होगा। और आप पड़ोस वाले को देख रहे हो कि उसका वो आ रहा है, उसको आ रहा है, वो अपना मार्क कर रहा है। तो लेकिन उसमें वाली सिचुएशन में आपको सिर्फ यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जा, जब तक आपको आपका कोई ना कोई सेक्शन ऐसा होगा जो आपको बहुत अच्छा होगा। जैसे हिस्ट्री आपका अच्छा हो सकता है, पॉलिटी आपका अच्छा हो सकता है, ज्योग्राफी अच्छा हो सकता है, इकोनॉमी अच्छा हो सकता है, करंट अफेयर अच्छा हो सकता है। तो उसी सेक्शन में से 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपको इनकॉर्पोरेटेड आपको आराम से मिल जाएगा, और आप आराम से इजी क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन तक आप आराम से पहुंच जाएंगे। दैट इज द फर्स्ट राउंड ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्विंग द पेपर। सेकेंड राउंड में आपको देखिए जो आपको 50-50% आता है, मतलब कि आपको पर लग रहा है कि दो ऑप्शन करेक्ट है। अब दो ऑप्शन करेक्ट करेक्ट में से आपको एलिमिनेशन मेथड एक होता है, और एक होता है कि हाँ, एक कॉन्सेप्चुअल मेथड होता है। आप उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो यू विल रीच टू द आंसर। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हैविंग द पेशेंस। आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। देखिए, अटेम्प्ट करने के लिए आप 100 भी कर सकते हैं, अगर आपको आता है तो आपको 200 मार्क्स मिलेगा। राइट। अटेम्प्ट करने के लिए अगर यूपीएससी का अगर हम लिस्ट देखें, स्केल आउट देखें, तो 98 100 मार्क्स तक वो जाता है। जनरल कैटेगरी का मैं बात कर रहा हूँ। रिजर्व कैटेगरी में और नीचे होता है 70 65 ऐसा भी होता है, बट आई एम कॉलिंग इट दिस अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। तो उसमें 98 टू 100 हम उसको स्केल ले सकते हैं कि यूपीएससी जो उसको लास्टली उसको लेके जाता है और सिलेक्शन में। तो बट यू डू नॉट हैव टू एट द मार्जिन। सपोज किसी टाइम में कुछ थोड़ा इजी पेपर आ गया, वो लिस्ट ऊपर चला जाएगा और स्केलिंग ऊपर चला जाएगा,
तो आपको क्या करना है कि यू हैव टू कीप योर सेल्फ इन द सेफ मोड। तो आप 105 और 110 के स्केल के बीच में आप अपने आप को लेकर आइए, लेकिन उस स्कोर के। स्केल पर, यस, 105 टू 110 के स्केल में लेकर आइए, कीप योर सेल्फ इन दैट स्केल, कि आपको इतने कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका होना चाहिए कि आपको इतने स्केल में आ जाए। अब उसके लिए आपको आपको 100 आपको 55 60 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए, राइट। तो ये जो करेक्शन वाला मोड है, आप फर्स्ट राउंड में जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आप 50 कर रहे हैं, 60 कर रहे हैं। सेकंड वाला मोड जो आएगा, ये सेकंड राउंड है, सॉल्यूशन आएगा, उसमें आपको 10-12 क्वेश्चंस ऐसा मिलेगा जिसमें आपको कंफ्यूजन है, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वो आपको हो जाएगा। और 10 क्वेश्चंस ऐसा होता है यूपीएससी में जो कहीं से कोई हवा ही नहीं रखता। So people do not know that from where section this the question has been asked. Even if you ask the experts, if you ask me some questions there in the UPSC question paper, it will be beyond the reach, right? Even beyond the reach of the teachers. If all the questions is, तो बहुत सारा 2-3 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन का रेंज मैं इसको लेता हूँ, वो ट्रू। उसको आप ले सकते हो, उसको आप यू कैन स्किप कंप्लीट। ट्रू सर। नहीं आ रहा है, नहीं पता है, उसको छोड़ दीजिए, रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है। आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, सपोज कर आपका 10 में से 4 सही हो गया, 3 सही हो गया, 7 गलत हो गया, तो दैट इज ए एब्सोल्यूट नेगेटिव। ठीक है, तो उसको आई वुड सजेस्ट कि उसको आप छोड़ ही दीजिए, उसके ऊपर आप डोंट प्ले ऑन दैट। बाकी जो आपको आता है, जिसको आपको 50-50% है कि हाँ मेरे को आता है, नहीं आता, तो वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट 60 क्वेश्चंस यू शुड बी वेरी मच क्लियर एंड वेरी मच दिस करेक्ट। अब वो 60 मार्क्स लाने के लिए आप कितना रिस्क लेना है, 95 अटेम्प्ट करना है, 96 अटेम्प्ट करना है, दिस इज अप टू यू, राइट। बट डोंट गो फॉर दिस 100 अटेम्प्टिंग, बिकॉज 10 क्वेश्चंस आर वेरी रिस्क। थर्ड अप्रोच है कि आपका जो सॉल्यूशन और जो क्वेश्चन जो गलत होता है स्टूडेंट का, वो होता है ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर में देयर आर 5 क्वेश्चन, आई टेक दिस स्केल ऑफ द 5 क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन आपका जो है वो ह्यूमन एरर से गलत होता है। ह्यूमन एरर क्या होता है कि आपको पता था ऑप्शन बी है, लेकिन आप ओवरमार्क शीट में मार्क कर रहे हैं सी। आपको पता था ऑप्शन सी है, आप मार्क कर रहे हैं बी, क्यों? बिकॉज आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो वो आप 5 क्वेश्चन को उसको कवर अप कर लेंगे ह्यूमन एरर से, तो आपका 10 मार्क्स ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो ये सब छोटा-छोटा 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको माइंड में रखना है। एक तो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट नहीं करना। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पेपर डिफिकल्ट है, तो सभी के लिए है। यू आर नॉट यूनिक, एंड दिस क्वेश्चन इज़ नॉट फ्रेम्ड फॉर द सम स्पेशल पर्सन, राइट? डिफिकल्टी लेवल इज़ हाई, तो दिस इज़ फॉर एवरीवन। जिसके लिए भी इसमें डाउट होगा, ईज़ी है तो सबके लिए ईज़ी है। तो यू आर ऑन द इक्वल प्लेटफॉर्म विद अदर्स। सो डोंट गेट साइकोलॉजिकल प्रेशर, गो फॉर द गुड प्रिपरेशन, ओके। राइट? राइट। और सर जैसे आपने ह्यूमन एरर की बात करी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना वो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो नॉट वाला मिस कर देते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट वाला मिस कर देते हैं, तो उसमें भी आंसर गलत हो जाता है। तो मुझे लगता है एब्सोल्यूट, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। आप यस, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, खासकर नॉट और करेक्ट इनकरेक्ट वालों को, ताकि एब्सोल्यूट, ये जो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन गलत होने की, आंसर गलत मार्क करके आने की, ये बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए, ये चली एब्सोल्यूट। जाए। ठीक है। सर एक और हमारा दूसरा पेपर होता है सी सैट का। अब जब से वो क्वालिफाइंग मार्क्स का हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसे फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया है। पर क्या होता है कि देखा गया है कि वो फॉर ग्रांटेड जो पेपर लेते थे हम, जैसे सी सैट को क्वालिफाइंग मार्क्स होने के बाद, क्या हुआ कि यूपीएससी कभी कभार ना उसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देता है कि पास मार्क्स लाना भी मुश्किल हो जाता है। यस, यस, ठीक यस। है, कई बार तो ठीक ठाक आ जाता है पेपर, और अभी उन्होंने लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी डिफ़िकल्ट कर दिया है, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी डिफ़िकल्ट हो गए। तो सर आप क्या स्टूडेंट्स को एडवाइस करना चाहेंगे, लाइक 2 महीने बचे हैं, इस समय पे वो सी सेट को कैसे देख सकते हैं? हाँ, यस मैडम। तो सीसेट वाला जो सेक्शन है, बच्चे क्या करते हैं कि इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी ने इसको खुद ही डिफाइन किया है कि ये क्वालिफाइंग है। तो क्वालिफाइंग का मतलब होता है स्टूडेंट बहुत इसको लाइटली लेता है कि ये तो क्वालिफाइंग है, हो जाएगा। बट लेकिन जो क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट देन द मेन पेपर जनरल ऑफ जनरल स्टडीज। क्योंकि अगर आपका सीसेट ही क्वालिफाइड नहीं हुआ, तो जनरल स्टडीज का पेपर आपका चेक ही नहीं होगा। तो I would say it has a more weightage than the main paper. Main paper definitely important है,
बट सी सेट भी आपका उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका जनरल स्टडीज़ का मेन पेपर है। तो सी सेट में एक्चुअली क्या है कि जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर से, ये यूपीएससी का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि इसको थोड़ा-सा टफ बनाया जाए, ताकि लो स्टूडेंट्स में बैलेंस हो। Balance in the sense they should go for the knowledge also, and their regional ability or the reasoning ability, logical reasoning, which is most important in the administration, ट्रू सर। वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अब जैसे इंग्लिश का बात करते हैं, कुछ हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट हैं, तो उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। तो वो जो अभी यूपीएससी का जो एक्सपेक्टेशन है दैट वेरी यू विल गो फॉर द रिप्रेजेंट इंडिया, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा बेसिक इंग्लिश और थोड़ा सा इंग्लिश आपको आना चाहिए। तो उसका सी सेट का पर्पस यही है। आपको बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक आपको वर्बल वर्बल रीजनिंग आपको आना चाहिए। ट्रू। तो ये सभी मेंटल एबिलिटी को, मेंटल स्टैंड को आपको दिखाता है। तो जब आप इसके ऊपर आपका स्ट्रॉन्ग अच्छा होता है या आपको उसको यू हैव द गुड प्रैक्टिस ऑन इट, then you can easily qualify. It is not difficult, definitely. You can give the 70 to 30% time of the CSET and your rest of the preparation of the general studies. जी So सर। this is, I would suggest it is equally important to the general studies. ओके सर, वन लास्ट क्वेश्चन। सर क्या होता है ना कि जब नेक्स्ट स्टेप है हमारा मेंस का, मेंस में ऑप्शनल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। हाँ, तो स्टूडेंट्स को, खासकर जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है या जिन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, उन्हें ना गाइडेंस नहीं मिल पाती ऑप्शनल को लेके। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि लाइक व्हाट ऑप्शनल दे शुड सिलेक्ट, और उनको एडवाइस क्या मिलती है कि जैसे आप जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है तो उसे अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से ही कुछ ना कुछ कंफर्ट लेवल होगा। जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है उससे उसे पता ही नहीं होगा ज़्यादातर। हमने जो हिस्ट्री पढ़ी थी क्लास स्कूल में, उसकी अप्रोच बहुत डिफरेंट थी यूपीएससी से। ठीक है। तो सर उसमें क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता ऑप्शनल कौन सा लें, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए ऑप्शनल के। तो एक सवाल ये भी होता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट ऑप्शनल का ले ले जिसका फ़ायदा हमें कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में भी हो, मेंस के जनरल स्टडीज़ में भी हो। तो जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, और पबैट, ये सब सब्जेक्ट हो गए, इनका फ़ायदा हमें कहीं ना कहीं जनरल स्टडीज़ के पेपर में भी मिल जाता है। तो सर आप, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें रोल और कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट इन जनरल स्टडीज़। यस, आपने बिल्कुल सही बोला कि ऑप्शनल को सेलेक्ट करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इट डिटरमाइंस और इट डिसाइड्स योर फाइनल सेलेक्शन। क्योंकि जनरल स्टडीज में आपको एवरेज मार्क्स आता है 100, 110 और 105, लेकिन आपका जो ऑप्शनल ही है जो मेन डिसिसिव रोल प्ले करता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जिसको एकेडमिक बैकग्राउंड, सपोज कोई हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ रहा है या ये कॉलेज में आपने उसने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा और अदर सब्जेक्ट्स जो पढ़े हैं, उनके लिए थोड़ा इजी होता है ऑप्शन को सेलेक्ट करना। लेकिन जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने ये, और पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनके लिए ऑप्शनल को सेलेक्ट करना बहुत एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो वो जाते हैं उसमें जो कि ट्रेंड एक होता है, फिर ट्रेंड में जैसे कि सपोज आज की डेट में बहुत पॉपुलर ऑप्शन बन गया है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो 70% स्टूडेंट्स आर, दे आर फॉलोइंग दी अदर्स। तो मेरा पर्पस ये है, स्टूडेंट को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ऑप्शनल वो सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप अच्छे से लिख सकते हैं, और कोई भी ऑप्शनल बिना सिलेबस को देखकर सेलेक्ट मत कीजिए। कोई भी ऑप्शनल इसे सेलेक्ट मत कीजिए कि आपका फ्रेंड ने सेलेक्ट किया है। कोई भी ऑप्शनल इसे सेलेक्ट मत कीजिए कि उसमें मार्क्स अच्छा आ रहा है और ट्रेंड अच्छा आ रहा है 5 साल से। क्योंकि आपको पढ़ना है और आपको उसमें आंसर को लिखना है, तो जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वो आप इसको नहीं कर सकते। डोंट टेक इट एज ए रिस्क, क्योंकि आप 2 साल उसमें वेस्ट करेंगे, फिर आप अपना ऑप्शन चेंज करेंगे, फिर इसमें 2 साल फिर लगाएंगे, सो इट विल बिकम ए वेरी फ्रस्ट्रेटिंग जर्नी एट द एंड। तो आप वही सोल्यूशन, वही ऑप्शनल सेलेक्ट कीजिए जो कि आपका इकोनॉमी, जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड का हो या आपका इंटरेस्ट हो। दूसरा अप्रोच एक ही होता है, या फिर थर्ड थर्ड अप्रोच ये होता है
कि आप पहले जनरल स्टडीज़ पढ़िए, और जनरल स्टडीज़ में आपको जो सेक्शन आपको बहुत कंफर्टेबल है, आप वो एज़ एन ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे किसी स्टूडेंट को पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटी बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो दे कैन ऑप्ट फॉर द पॉलिटिकल ऑप्शनल, पॉलिटिकल पीएसआईआर ऑप्शनल। ओके। किसी को ज्योग्राफी अच्छे से समझ में आता है, दे कैन गो फॉर द ज्योग्राफी ऑप्शनल। किसी को इंडियन सोसाइटी अच्छा इंटरेस्टिंग लगता है, तो दे कैन गो फॉर द सोशियोलॉजी। And some people have the interest, or they develop interest in the history, so they can go for the history option. So they can also follow the same approach where they, other aspect or the other part of general studies. So that way they can go for the selection of option, and definitely optional is very very key role. और फोर्थ अप्रोच आपका ये है कि आपको ये देखना चाहिए कि हाउ मच कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑप्शनल इज प्लेइंग रोल इन द जनरल स्टडीज. For example, PSIR no doubt has a big share in the general studies, because general studies paper 3 is completely, sorry, paper 2 is completely a Indian polity and IR, right? So because of considering this advantage with the PSIR optional, people are going on this. People are following the, or people are taking the PSIR option. And also people are taking the geography optional, because geography optional has at least 90 marks there in the paper 1, and about 60 to 70 marks or 80 marks there in the paper 3, because they have environment, they have disaster management, they have other aspect of the this the geography section. Biodiversity is also there. So the geography also has a big share there in the general studies. So in total of this, 90 marks there in the paper 1, and about 60 to 90 marks in the paper 3. So these two options are very much popular. And history is also has a share there in the paper 1 only. So PSIR and geography are mainly, and today it is a very very popular option in the present competitive trend. ओके। सर, मुझे लगता है कि आज का जो सेशन था वो बहुत ही इंसाइटफुल सेशन था, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, स्पेशली जबकि सिर्फ 2 महीने बाकी हैं प्रीलिम्स में। सर, मैं अपनी प्लेटफॉर्म द आईएएस वर्ल्ड और अपने स्टूडेंट्स की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक्स कहती हूँ कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, और मैं आशा करती हूँ कि सर आप फिर से हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी।